This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। साथ वी वर डिस्कसिंग कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हुकूमतें साइन करती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, तो इनकी कॉम्पिटेंस जो है, अब जाहिर है कि ग्रेड 2021 वाले जो ऑफिसर्स हैं उनका ये एक्सपीरियंस नहीं है, दे नीड लॉट ऑफ हेल्प। सो डू वी क्रिएट स्पेशल सेल्स जिसमें ये एक्सपर्टीज हो? हाउ डू वी हैंडल इट? क्या कोई एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर, एक्सपीरियंस ये कहता है कि यू शुड नॉट क्रिएट मोर सेल्स। पाकिस्तान गवर्नमेंट इज लार्ज इनफ, पंजाब गवर्नमेंट हैज 1 million एम्प्लॉइज। ये एक्सपर्टीज फॉर डिफरेंट सेक्टर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट people. Who are those people? Those people, sir, and we've had that experience. What I was going to come to is the 94 power policy. हमने हंटन एंड विलियम्स एक लॉ फर्म हायर की थी। हमने ये कंपनी होती थी बॉस्टन बेस्ड, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम, सीसी पेस में वो दे वर द इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स फॉर दैट। दे हायर्ड एन इन्वेस्टमेंट बैंक व्हिच स्ट्रक्चर्ड ऑल दोस। आपकी जो भी ये बहुत बड़ी डील्स होती है ना, हम कहते हैं $1 billion डील्स, एंड जहाँ $1 billion स्कैम्स भी होते हैं, उसके लिए इट इज वेरी गुड टू हायर दीज वेरी लार्ज बल्क। क्या कॉस्ट इनकी आएगी? 1% ऑफ द एंटायर अमाउंट और लेस देन दैट? इफ इट्स $1 billion ट्रांजैक्शन, जी, लेस देन 1%। इट्स इन पॉइंट्स। It's in points. For $1 billion deal, it's in points. The Privatization Commission at the government of Pakistan has had a very good experience with this. They've done a lot of transactions where they've hired. अब आप देखें ना कि स्टील मिल में जब हुई है प्राइवेटाइजेशन, who were the advisors? Sir, it was Citibank. But according to Citibank, और लोकल कौन था? You remember the local? So Citibank has a local presence here. Okay. Citibank is established. एक ये भी तो है ना रिक्वायरमेंट प्राइवेटाइजेशन कमीशन की कि you have to have a local partner also. They themselves were the local partner because Citibank is established in Pakistan and it is a local bank here as well. So and they've been that. So Citibank was the financial advice. बात सर ये कि देखें सिटी बैंक, so didn't they, I mean they had technical advisors, they had वो कोरस था जो कि इनका टेक्निकल साइड पे था. Didn't they have world class, did privatization commission have world class advisors for that transaction? It did, and the valuation they came up with, the Pakistan steel mill की privatization में valuation उससे ऊंची मिली थी. It was a fair transaction. The point sir is कि when I am of the personal belief that when the highest court of the land makes a decision, one has to accept it. Yes. If the highest court of the land said that that transaction was not accurate, then you have to accept the fact that it had something. But उसका impact ये निकला ना कि after that you haven't had any transaction. Privatization, absolutely. And you also had lots of losses in the steel mill, and I mean scoundrels are still. I mean, it seems because they raided the mill and absconded and all that. तो बात यही आ जाती है कि इंटरनेशनल अगर आपके पास टीमें हैं और फिर भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होंगे, तो where do we go? I mean, Farah sir, what's your view on this? नहीं, देखें, ये तो सारा for the Supreme Court to take notice. This rises far above the professional जो कि उनके consultant थे. Like Saad said, that they gave, the professional consultant gave a good valuation of the steel mill. And it was considered a good, favorable deal for Pakistan. ठीक. अब उसके बाद जो legal complications हैं, तो the court must have seen something different from what the professional did. Right. So it was weighing the professional advice and the court advice. So basically what you are saying is कि हमारे rules of business जो हैं वो इतने define होने चाहिए कि ये legal complications बीच में फिर नहीं आनी चाहिए. मेरा ख्याल है इसको हम नहीं avoid कर सकेंगे. इसको हम नहीं कर सकेंगे avoid. So we always end up. There is always a possibility. You will have. So what's the solution? I mean, क्या मतलब ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने का क्या तरीका हो सकता? बाकी दुनिया क्या करती है? बाकी दुनिया यही करती है कि जी आप कंसल्टेंट, अमेरिका में भी उनकी इन हाउस कंपिटेंस तो नहीं होती है डिपार्टमेंट्स में. दे हायर consultants of international reputes
and they are respected consultants who are expected to give fair valuation, and that's accepted. And हुकूमत का काम है कि make sure you get good value out of those Good value, consultants. और आप consultant ऐसे लगाएं जो fair हों and perceived to be fair, and indeed they are fair, and that's about the government can do. उसके बाद तो फिर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो तो इतना ओपन फील्ड है, you can never arrest. You can't stop it. You Sir, can't you arrest know, them. having done mergers and acquisitions on Wall Street, I'll give you an example what happens in the US. अगर आप पब्लिक कंपनी का मर्जर करवाएंगे, where one company is above, you have to go to another investment bank and get a fairness opinion. अच्छा. So what the other investment bank does is, now everyone wants business, वो दूसरे की गलती Counter ढूंढेगा. check. Counter check है आपका. So public company is there, merger between large companies. What happens is there is always a, because उनको shareholder lawsuits का डर लगता है, वो भी को. So they go to a third party independent investment bank, say here's a few $1 million. आप इसका हमें जी fairness opinion दे देंगे. तो फिर वो fairness opinion दे cost देते हैं. थोड़ी सी बढ़ तो थोड़ी जाएगी. सी cost. But the thing is that at some point you have to trust somebody. ठीक. Not, and somebody like JP Morgan or Citibank जिनका 150 अरब डॉलर का आपकी नेशनल बजट से वो कोई 100 गुना बढ़े हैं नहीं 10 गुना बढ़े. Yes. Those people are not going to tarnish their reputation for a rounding error on their balance sheet from Pakistan. They work on their reputations, so you have to trust them. इसका solution जो आपने कहा ये हो सकता है. I'm not trying to attempt to advise the court what they should do, लेकिन जैसे साद ने कहा है कि if there is suspicion of wrongdoing, wrong evaluation by one consultant, the courts can tell the government कि जी हमें आप shortlist करके consultant दें, हम उनकी due diligence कराएंगे, अब आप इस से इसकी That could re-evaluation be the कराएं, second check. और हमें इसकी report दें. I'm sorry, Because आपने- this is purely a professional subject through and through. I'm sorry, आपने शुरू में कहा था कि कोई एग्जांपल्स देने, तो आई जस्ट थॉट वी शुड ऐड अ बिट ऑफ ह्यूमर टू दिस. सर, आप इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हब को ओपनड अप द वे फॉर अदर आईपीपीज. ठीक. जब नई गवर्नमेंट आई उनको समझ नहीं आई जी कि इसमें गलतियां क्या हैं. दीज डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आर अबाउट दिस थिक, राइट, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस. सो हमारे जीनियसेस एट FIA वगैरह स्टार्टेड ओपनिंग दोज डॉक्यूमेंट्स. उनको और कुछ मिला नहीं मिला सर, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ. एक भैंस चोरी करने का FIR काट दी, और दूसरी उन्होंने एक बेचारे सिविल जज के सामने 25 अरब रुपए की जो डिस्प्यूट की, 25 अरब रुपए की उन्होंने कोई क्लेम डाल के इधर वो लाहौर सिविल कोर्ट में फाइल कर दी वापदा ने. वो बेचारा जज 11,000 रुपए कमाता था सर, उसके सामने आपने 25 अरब रुपए का एक क्लेम रख दिया है. वो कोई 28-30 साल का बच्चा है, उसको आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे टू डू इट? Now that is the basic problem. Hire a competent people. If you think there's something wrong, go hire a good Big 4 accounting firm, a law firm, और जो आपको गलती मिलेगी, Recordec में मिलेगी, थर में जहां भी मिलेगी, your government will get the money from plug the holes. You get your international arbitration award. इधर तो अभी इन्होंने नंबर नहीं बोला, but The Recordec. number, what I heard, I will not bet upon that. It's about $35 billion. My God. You double Pakistan's debt. You right can- now. I'm sure we don't have to can pay think- that kind of money. Think of the magnitude of the issue. वो तो consequential damages एक किस्म के सारा हो फिर गए तो ना. देखें जी, फिर तो then the lawyers come in and they know how to build the claims and they're pretty good at it. So what if you say, okay, now we do an out of court solution? I think that would be a better way Well, of out of moving court it. solution, what I see will also be few $1 billion, because it's not going to be that easy. So basically, Mansoor, what do you say? Foreign investment Pakistan mein, is it a dream or it can happen? I mean, absolutely. I think we man, can I would be the change last the- person. I would be the last person who would ever say कि जी नहीं, it's a तुमने जो dream. बातें की है ना जी कि laws, antiquated laws, implementation भी नहीं है, competence भी नहीं है, strategy भी नहीं है. I'm not saying you are, but I think this is kind of what we are coming towards. कि at the end of the day, foreign investor is not going to come, as they say, they come one by one and then they quit together. तो कैसे what should we be doing to get them on board?
डॉक्टर उसमें मेरे ख्याल में एक तो आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होगी, एक आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होगी। जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में अगर आप वेल रिगार्डेड अच्छी कंपनीज को बुलाना चाहते हैं तो यू वुड हैव टू डू समथिंग अबाउट करप्शन। अगर आप करप्शन खत्म नहीं करेंगे या करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो ब्रांड नेम कंपनीज हैं जिनके अपने मुल्क में करप्शन लॉज हैं वो यहाँ पे नहीं काम कर सकेंगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जो आपने नई नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वीजाज पे, वर्क परमिट्स पे, इनको मैं नहीं कहता कि नेशनल सिक्योरिटी को आप जेपरडाइज करें, लेकिन आपने क्लियरेंस करवानी है, आप एक 15 दिन का टाइम दें, गेट इट डन विद, और आप आगे चलें। ये तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म की चीजें हैं। जो लॉन्ग टर्म में आपने चीज करनी है, जो कि मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म की मेरी जो डेफिनेशन है फ्रॉम 1 मंथ टू 36 मंथ्स, आपने जो रेलिवेंट लॉज हैं उनको आप रीराइट करें। और इसके लिए अगेन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है खुद वो काम करें। अगर आप 1882 में एक बरतानिया का कानून ला सकते थे तो आज 150 साल के बाद, जब आपको ज्यादा अंग्रेजी पता है, जब आपके लोग ज्यादा पहले से पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, आप किसी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन का, क्योंकि पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री है, वहां के जो लेटेस्ट लॉज हैं या जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं 3-4 कॉमन लॉ कंट्रीज के, आप उनको एमेलगेमेट करके वो आप चीज क्यों नहीं ला सकते। 1908 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1901 या 2 के लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के अंडर आप 21वीं सदी मेरे ख्याल में अगर विल है और एक एप्रिसिएशन है। पाकिस्तान में जो एक मसला है, मैं बात को मुख्तसर करता हूं, पाकिस्तान में एक मसला है कि लोग ये समझते हैं नंबर 1 ये तो जी ऐसे ही है, नंबर 1, और नंबर 2 हमारे जो वकला हजरात हैं वो इन सारी चीजों को एज अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। उनकी मसला होगा, लिटिगेशन चलेगी, वो समझते हैं कि ऐसे हमारा रोजगार बढ़ेगा। हम ये नहीं देखते कि हम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहते हैं कि हम ज्यादा बेसिकली डिस्प्यूट्स चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो वो आपको देखना है कि अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं तो इतना ज्यादा काम होगा कि आप जो डिस्प्यूट्स खुद क्रिएट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, आप कहेंगे कोई प्रोडक्टिव चीज हो एज कम्पेयर टू डिस्ट्रक्टिव चीज। और बिल्कुल एक जो आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये एक हकीकत है कि हमारे लॉयर्स में वो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉ फर्म्स में है। आपने अगर एक चीज एक दफा की है तो उन्होंने वो चीज 200 दफा की होगी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच साद फॉर वेरी वेरी वाइज काउंसल एंड एक्सपीरियंस। एंड फरद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका निचोड़ जो आया है इस चीजों में, आई मीन इट हैज बीन इनवैल्यूएबल। एंड मंसूर ग्रेट job on the legal side. Unfortunately time khatam ho raha hai, and what we have seen is that foreign investment is doable, it can come to Pakistan, it creates a great momentum for growth in the economy, jobs बनती हैं, गुर्बत दूर होती है, लेकिन इसको लाना आसान काम नहीं है। परसेप्शंस अबाउट पाकिस्तान उनको हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क्स को बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे बड़े डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का एक रोल आता है, तो गवर्नमेंट हैज टू हैव द बेस्ट एडवाइस, द बेस्ट कंसल्टेंट्स, एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे पैनल ने कहा कि अगर आप वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टर्स चाहते हैं जिनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिनके मैनेजमेंट के बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान का ब्रांड इमेज बहुत इंप्रूव कर सकता है, देन यू विल हैव टू हैव द बेस्ट रूल्स। डीरेगुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 2012 में आना पड़ेगा फ्रॉम 1872, गेट द बेस्ट टीम्स ऑन बोर्ड एंड देन यू गो आउट एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। And I think we will definitely benefit enormously. और फरद साहब ने डिस्क्राइब किया था कि जिस साल ज़्यादा FDI आती है उस साल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, उस साल जॉब्स भी ज़्यादा बनती हैं, और जब FDI नीचे जाती है, ग्रोथ भी नीचे आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर जाती है। वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू। Program was brought to you by
जहां ख्वाब वहां HBL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।